friends, I'm AP Singh, and with me I have today two distinguished guests. Navneet Mittal, ranked 69 in Civil Services Examination 2019, and as well as with me I have Anil Kumar Rathore, ranked 81 in the Civil Services Examination 2019. One more significant aspect, both of those two distinguished guests have qualified even Civil Services Examination 2018, and over the period of time they have devoted themselves to the preparation which you people as of now are participating in. And these 50 days are very significant, are going to play a very crucial role in the journey which ultimately may lead to a very beautiful career. And so in this journey, the most important stage sometimes becomes that is a prelim examination, because if you do not qualify the prelim, we may not get an opportunity to move ahead. And if you do not qualify prelim, it means there is no main, and if there is no main examination, it means there is no interview, and maybe we had to again start our journey afresh. So what should we do? What should we not do? What kind of precautions to be taken? What can be a better strategy, especially when we have only around 50 days waiting for us? How to effectively utilize this time? What kind of a mindset we shall be carrying along with ourselves? What kind of a method, strategy, plan we can have in order to keep ourselves motivated? So many aspects we'll try and discuss so that you can fruitfully utilize the entire time of 50 days. But before we move further, I would request first Navneet and then Anil to give you a brief idea about their background so that you can relate relatively more. Navneet, please, if you can share something about your background, academic or your optional subject, etc. Thank you very much, sir, for having me here. Hello, everyone. Myself, Navneet Mittal. I am from Delhi. I did my graduation in Computer Science and Engineering from IIT Jodhpur in 2016. After that, I started preparing in 2017 and I gave my first attempt in 2018. In that attempt, I got AIR 319 and I allotted DANICS service. Currently, I'm undergoing training as a DANICS officer in Delhi. In 2019, I gave my second attempt and I have got AIR 69. Thank you. Anil, please, आप कुछ बताएं अपने बारे में. Thank you, sir. Hello, everyone. Myself, Anil Kumar Rathore, and I am from Morena, Madhya Pradesh, and this was my fifth attempt, and I have qualified with 81 rank. Before this, I also qualified in 2018 with 569 rank, and this was my fifth attempt. And as well, I am graduated from IIT Delhi in mechanical engineering. And after that, after graduation, I decided to appear for civil services, and so I'm giving my attempt from 2015 onward. And I am qualifying prelims every time. I have wrote 3 forest also. So because of that, I think I can help a little bit in your preparations, and I can guide you as much as possible from this stage. Thank Yes, you. the beautiful part, as Anil has said, that he has qualified every civil services prelim he has appeared in, and he has endured over the period of time. काफी मेहनत की है उन्होंने, और ultimately result उनको जो चाहिए है वो result भी आया है. तो sooner or later result come. But अब preparation में अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अब ये 50 दिन बचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहला थॉट क्या होना चाहिए फॉर द 50 डेज, अनिल, कि अब ये जो लास्ट 50 डेज हैं इसमें पहला थॉट क्या होना चाहिए कि कैसे आगे जाना है? सर, सबसे पहले जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक नहीं होना है. 50 डेज आर मतलब काफी इनफ दिन है. अगर आप एक बार भी सिलेबस पढ़ रखे हैं या फिर कुछ चीजें छूटी है तो वो भी इजीली कवर हो सकती है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमेशा से यूपीएससी का फोकस रहा है, स्पेशली इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, प्लस करंट अफेयर्स इन इकोनॉमी. तो इन चीजों पे हमारा मेजर फोकस होना चाहिए. उसके बाद जैसे कुछ फ्रिंज टॉपिक हैं जो मुझे लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा लास्ट में भी कर सकते हैं या फिर कम टाइम डिवोट कर सकते हैं उसके लिए, और बार बार रिवाइज जरूर करें सो दैट कि जब हम एग्जाम में बैठे हो वहां पे हमें कंफ्यूजन ना आए. स्पेशली यूपीएससी के क्वेश्चन इजी
रहते हैं मुझे लगता है, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करते कई हैं। बार हमें लगता है पता है, लेकिन हाँ, फिर भी नहीं पता है, वो ऐसा होता वही रहता वही है। डाउट में घूमते रहते हैं, एक ऑप्शन में हमेशा डाउट रहता है। नवनीत, अगर जैसे हम ये देखें कि जो लास्ट 50 डेज हैं, तो क्या टाइम आ गया है दैट द स्टूडेंट शैल गो फॉर मस्ट शैल मे स्ट्रेटजी की, लाइक फर्स्ट यू डिसाइड दैट फर्स्ट व्हाट शैल बी कवर्ड, देन व्हाट अदर थिंग्स विल बी कवर्ड, अगर टाइम है तो फिर और कुछ कवर करेंगे। ये सर बिल्कुल सही बात है, जैसे अनिल ने भी बोला कि हमें स्ट्रेटेजाइज करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी उनको हमें सबसे पहले करना है। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे टॉपिक्स होते हैं जिससे मतलब इतना रिटर्न नहीं होता है, तो वो चीज़ हम लास्ट में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर कि स्ट्रेटेजाइज करना है इस चीज को। अब जैसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लाइक दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द नोट्स। सो अगर रिवीजन को स्टार्ट करना है तो व्हाट शैल बी अ रिवीजन स्ट्रेटजी, कि कैसे रिवीजन के लिए स्टार्ट करें कुछ? यस सर। सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वो पढ़ने हैं। अदरवाइज सर जो स्टैंडर्ड बुक्स है हर सब्जेक्ट की, उनको रिवाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम इट सर, ये स्टैटिक, इनसे स्टैटिक कवर होगा। इसके बाद सर करंट अफेयर्स के लिए अगर खुद के नोट्स हैं तो सर उन्हें रिवाइज करना है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो सर ईयरली मैगजीन को भी रेफर किया जा सकता है, जो 365 मैगजीन्स आती हैं, उनको भी रेफर किया जा सकता है। और सर इसके अलावा सर सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन का टेस्ट पेपर देना। तो रोज एक टेस्ट पेपर दे, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट पेपर हो या फुल टेस्ट पेपर हो। इस पे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज अ की एस्पेक्ट, वी विल कम बैक टू दैट। अनिल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें रिवीजन के लिए, क्योंकि आपने कई बार सक्सेसफुली रिवाइज किया है? तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, नवनीत ने जैसे सही कहा कि सबसे पहले हमें अपने नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने जो चीज लिखी है वो काफी खोजने के बाद मतलब जो हमें लगा है कि इम्पोर्टेंट है वही लिखी है। स्पेशली जो न्यूज़पेपर के नोट्स हम बनाते हैं वो रिवाइज करना तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए। उसके बाद काफी सारी चीजें हैं, जैसे फ्रिंज टॉपिक हो गया आजकल, जैसे रेड लिस्ट वगैरह, IUCN की रेड लिस्ट हो गई, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, ये हमें लास्ट में ना रिवाइज कर ही लेने चाहिए, स्पेशली क्योंकि फोकस इन अच्छा, जैसे ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार हम देखते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या जैसे आप रेड लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, या बहुत सारे जो रिपोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इंडाइसिस रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रिवीजन के लिए अभी ज्यादा बेटर है या एग्जामिनेशन कुछ दिन पहले ज्यादा बेटर है? सर मुझे लगता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले, क्योंकि हमें वो जैसे CD रोम होता है, रैम होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में ये शॉर्ट टाइम के लिए रह पाता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो एंड में रखना थोड़ा मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मुझे जो लगता है स्टार्टिंग में हमें वो टॉपिक रिवाइज करने चाहिए जो कंसेप्ट बेस्ड है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड चीजें अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें अगर एंड में ना रिवाइज करें तब भी याद रहेगा, उनका रिटेंशन ज्यादा टाइम तक हो जाएगा, क्योंकि हम समझ चुके हों। और जो रोट लर्निंग वाली चीजें हैं वो हमें लास्ट टाइम में पढ़नी चाहिए, मतलब एक बार तो पहले पढ़ लेनी चाहिए, फिर लास्ट टाइम में वही पढ़ना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में रहे, क्योंकि वो चीज ज्यादा एक टाइम और लाइक आई थिंक नवनीत की, बिकॉज व्हेन वी हैव दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर प्योरली फैक्चुअल इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स, हु पब्लिशेस व्हिच रिपोर्ट एटसेट्रा, क्या ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन प्रिपेयर अ काइंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स? फॉर एग्जांपल, एक पेज पे हमने जो आज तक एग्जामिनेशन में कुछ सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स है, क्योंकि हमने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, लाइक वी टॉक अबाउट द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वी टॉक अबाउट द सर्टेन स्पीशीज ओवर देयर, वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द सर्टेन राइट दिस वेरियस एरियाज। उसी तरीके से जैसे हम करंट अफेयर्स में देखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, उसके सिग्निफिकेंट कुछ पार्ट्स हैं, तो क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक सेपरेट लिस्ट बनाना कुछ इज अ बेटर आइडिया? या यस सर, इट्स अ वेरी गुड आइडिया सर। जैसा बोला गया है कि इन चीजों को हमें मेजरली पढ़ना लास्ट में है, बट हमें मेक श्योर करना है कि आज से ही हम अपने इन टॉपिक्स को कवर करके ये इंश्योर कर लें कि लास्ट तक हमारे पास इनके प्रिपेयर्ड नोट्स हों, ताकि हम उन्हीं में से पढ़ें। हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इनकी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट्स की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम के लिए कोई भी एक बुकलेट उठा लीजिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम के लिए, और उसी को ही रिवाइज करना है। तो ये चीजें पढ़नी अगर लास्ट में है मेजरली, बट इंश्योर दैट कि यू हैव योर ओन नोट्स, ओन फैक्चुअल नोट्स रिगार्डिंग देम बिफोर द प्रीलिम्स। इस रिवीजन के टाइम पर ये जो योजना, कुरुक्षेत्र, ये वाली इस तरीके की जो मैगजीन है, क्या अब ये टाइम है इन मैगजीन को देखने का, या कैसे अगर इनको देखना है तो कैसे फॉलो कर सकते हैं? सर मैं तो एडवाइस करूंगा कि इस टाइम पे ये चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। एकदम स्पेसिफिक
जो चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए वो चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि योजना जो ये मैगजीन्स है ये थोड़ी मेंस ओरिएंटेड होती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एडिशंस हैं रख लो, हाँ, और जब इनका टाइम आएगा तो मे बी गो बैक टू दिस। क्यों नहीं? मेंस के टाइम योजना, कुरुक्षेत्र, इनका जो एनालिसिस है वो हमें मेंस में काफी हेल्प करता है, बट प्रीलिम्स मोर ऑफ ए फैक्चुअल। तो प्रीलिम्स के लिए सर हमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं, मेन है हमें कि थोड़ा डाटा या फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे पीआईबी जैसे सोर्स हो गया, उसमें अगर कोई न्यूज आई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको फिर हमें अलग से भी सर्च करना चाहिए, जो भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेंशन हो। जो ऐसे एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन, ये जो पीआईबी वाला पार्ट है, कई बार ये हमें एक तरीके से सारी मिनिस्ट्रीज की जो हैपनिंग है वो मिल जाती है कि विच मिनिस्ट्री एज ऑफ नाउ इज डीलिंग विद व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज। तो शायद एक वो हमें बता भी देता कि अगर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो उसके आसपास के एरियाज प्रिपेयर कर सकते हैं, वहां से हम टॉपिक उठा सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। और कई बार इसमें एक और चीज होती है कि जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका जो गवर्नमेंट का इनपुट है उसमें, क्योंकि जो ऑफिशियल इनपुट होता है वो हमें हेल्प कर देता है। तो अनिल, अब अगर हम सेकेंड पार्ट में आए इसके अलावा, तो जैसे हम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो आप कुछ क्या करते थे इस टाइम पे अगर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस को देखें, और आपको क्या लगता है कि कितना सिग्निफिकेंट है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जैसे मैंने फील किया 2017 जब मैं राइट कर रहा था एग्जाम, तो मुझे वहां पे टाइम मैनेजमेंट में काफी इश्यू हुआ, और लकीली आई गॉट थ्रू, बट मुझे थोड़ा इश्यू हुआ वहां पे। तो मुझे लगा उस अटेम्प्ट में थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि हर बार निकल रहे अच्छे मार्क्स से, तो आराम से ज्यादा टेस्ट नहीं लगाए थे। बट मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट और ये बाकी जैसे चीजें हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस बहुत टफ भी आ जाते हैं, तो हमें वहां से स्किप करके आगे बढ़ देना चाहिए, ताकि इजी वाले क्वेश्चन कभी भी ऐसा ना हो कि हमें टाइम कम पड़ जाए और कम टाइम के चक्कर में हम वो खराब कर लें। जनरली कई लोगों के साथ, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि हमेशा सर ऐसा हुआ है कि कुछ बंच टफ आते हैं तो वो स्किप करके जैसे वो आगे अटेम्प्ट कर लो, फिर पीछे आगे दोबारा अटेम्प्ट कर लो। तो ये सब अच्छा प्रैक्टिस से ही आता है। नवनीत, जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चन की, तो एक तो ये कि क्या सोर्स हो सकते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, और दूसरा कई बार हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन बहुत सारे सोर्सेस से, वी सी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट मे कम अक्रॉस, दे मे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड दे थिंक वी डू नॉट नो आंसर्स टू दोस क्वेश्चन, एंड सडनली सम ऑफ देम मे गेट demoralized also that we are not able to answer those questions। तो फिर उसको कैसे टैकल करेंगे ये दोनों फेजेस को? सर ऐसा होता है कि जैसे टेस्ट सीरीज जो होती हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई नया ही क्वेश्चन आ गया है तो आप उस पर पूरा मतलब रिसर्च करने चले जाएं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है उस चीज के लिए। सिंपल चीज है कि आप भरोसा रखिए कि आपने पूरे साल तैयारी करी है, तो कहीं ना कहीं से आपकी नॉलेज से ना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे प्रीलिम्स में। तो अगर कुछ भी नया आप देखते हैं टेस्ट सीरीज में, आप उसको हम मार्क करिए और टेस्ट सीरीज को उसके सोल्यूशन को बाद में रिवाइज करिए, इंस्टेड की आप पूरा वो टॉपिक वहां जाके पढ़ रहे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी अगर मैं कुछ भी नया आता था। How far this is true that when I say suppose to the student that you should be judging that what you can answer from what you have studied, not what you can answer from what you have not studied। जो पढ़ा नहीं है उससे क्या आंसर दे रहे हो उसके बेसिस पे जज मत करो, जो हमने पढ़ा है उससे हम आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे उसके बेसिस पे जज करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन सही जा रही नहीं जा रही। यस एग्जैक्टली। तो अगर जब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस समय जो निगेटिव मार्किंग के पैटर्न को देखेंगे तो नवनीत क्या आपको क्या लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए? जैसे कई बार हमने देखा कि हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के शायद दो फेज हो सकते हैं। वन फेज ऑफ द प्रैक्टिस में बी वेयर वी आर सिंपली सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड देन सेकंड इज अ काइंड ऑफ अ मॉक प्रैक्टिस ओवर देयर। सो डिड यू टेक दोस टू लाइक वन काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस जहां पे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके अगर हमें आंसर नहीं आते तो हम फिर उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, और एक होता है हम एग्जामिनेशन के काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में बैठ करके टेस्ट दे रहे होते हैं। तो क्या ये दोनों तरीके की स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की थी या मतलब कोई पर्टिकुलर इसमें से? सर लास्ट के 2 मंथ्स तो मैंने सर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही एग्जाम दिया था। 2 घंटे जैसे एग्जाम वहां बैठना है, ऐसे हॉल बिल्कुल एकदम शांत कमरे में सर 2 घंटे लगातार बैठ के सारे क्वेश्चंस करे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, उसमें मैंने कुछ पढ़ लिया अपना स्टैटिक, और उसके बाद सर फिर मैं अपने आंसर्स चेक करता था, उससे मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करता था, और उसके बाद मैं सोल्यूशंस देखता था कि कहाँ मेरी गलती रही है, और उससे सर नॉलेज बढ़ेगी जब सोल्यूशंस आप देखेंगे। तो सर जैसे एग्जाम होगा वैसे ही देना है सर। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि वैसे ही दिया है, और एडवाइस मैं यही करूँ कि वैसे ही दें,
क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि हमारी मेन मतलब प्रीलिम्स एग्जाम को हमें टेस्ट सेंटर में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी भी सर वहां से इवॉल्व होगी। कितने हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने राउंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं, और कैसे करने हैं अप्रोच, कैसे गेस वर्क करना है, ये सब चीजें जब हम टेस्ट को एग्जाम की तरह देंगे तभी डेवलप होगा सर। अनिल, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इनटू दैट? सर नवनीत ने मेरे हिसाब से तो सारा कवर कर दिया कि एग्जाम के हिसाब से ही हमें देना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें अपना कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश करने के लिए 1-2 टेस्ट ऐसे दे सकते हैं जहाँ पे हम लर्निंग के हिसाब से दें, बट जब लास्ट फेज ऑफ जो प्रीलिम्स का आ जाता है, लास्ट 20 डेज स्पेशली, एग्जाम पैटर्न में ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हमेशा से एक इश्यू रहता है, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है ये चीज। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट पे ही आ जाएं, तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम से पहले, एक तो 2 फेज हो गए, एक तो हमें एग्जाम में रियल टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्जामिनेशन से पहले अगर हम प्रिपरेशन के टाइम देखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट पे क्या कुछ स्पेसिफिक आपने एम्फेसिस किया हो कि सिलेबस कवर हो जाए और टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करे? एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट? सर सिलेबस कंप्लीट करना तो मुझे लगता है होलिस्टिक नॉलेज के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं एक तरह से लिंक होता है। जैसे हमने कल्चर में कुछ देखा, स्पेशली जैसे मैं काफी पढ़ रहा था ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल की जब कभी भी कोई नाम पढ़ रहे हो आप, जैसे सतीश, हम हिंदी में लिखते हैं SATISH, जबकि तमिलनाडु स्पेशली 90% ऑफ द केसेस SATHISH। तो कभी भी आप ऑप्शन भी देखोगे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आप थोड़ा सा लगता है कि 50-50 चांस भी लेना है, तो वहां से वर्ड टूट के आते हैं कि जैसे TH आ रहा है स्पेशली, और साउथ का वर्ड है, तो 90% ऑफ द केसेस मैंने पाया कि ये तमिलनाडु से है, और मतलब ऐसे में दौड़ के वर्ड्स को ये भी लिंक करता था, तो मुझे काफी हेल्प होती थी। आपने एक्सपीरियंस किया कि क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस किया है, फिर उसके आंसर्स देखे हैं, तो यू हैव कम टू नो एक्चुअली दैट वो हम एक और पार्ट होता है एग्जामिनेशन का जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसेस। कई बार हमने पढ़ा है बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। तो एक तो 2 चीजें हो गई हैं, एक तो ये टाइम मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं वो है, पर जैसे हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या यहाँ से भी ये माइंडसेट भी रेडी करके चलना चाहिए फॉर 50 डेज कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं वेयर वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन, वेयर वी हैव दैट सिचुएशन वेयर वी थिंक द आंसर शुड बी लाइक दिस बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, तो कुछ कोई मार्कर्स होते हैं, कोई ऐसा कुछ है कि जो आप पहले से ध्यान रखते हैं हाउ टू डील द क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर वे? यस सर ऑनेस्टली जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे प्रीलिम्स में, तो उसमें से अराउंड 50% to 55% ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम 100% श्योर होंगे कि ये सही है। राइट। उसके बाद सर जैसे क्या होता है कि पहला राउंड में हमने क्वेश्चंस किए, पहले हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें हमें 100% श्योर है, मान लीजिए उसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद सेकेंड राउंड में सर आप देखेंगे कि अब आप मतलब कट ऑफ से कितना दूर है, तो उससे आप डिसीजन लेंगे कि अब मुझे कितना और अटेम्प्ट करना है। तो सेकंड राउंड में सर वो क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें हम 50-50 श्योर होते हैं। उसके बाद सर फिर मैंने देखा कि अब मैं कट ऑफ से कितना दूर हूँ, थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेटली। फिर सर थर्ड राउंड में सर लीप ऑफ फेथ जो होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग, जिसमें मतलब बहुत ही मतलब नहीं आता है, उसमें भी अगर तुक्के मारने पड़े तो वो चीज थर्ड राउंड में होती है। तो सर ये ऐसे मतलब वो क्वेश्चन पेपर को देख करके फिर अनिल इफ यू सी दिस इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं हम लोग। अब गेस तो गेस है, पर फिर भी अगर हम बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस है और एक तरीके से वाइल्ड गेस है, हम नॉर्मली हमारी प्रिपरेशन की लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू दैट दिस इज अ इंटेलिजेंट गेस, दिस इज अ वाइल्ड गेस? एक तो आपने जैसे भी बताई थोड़ी देर पहले कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस है हमारे। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन के दौरान हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ रखा होता है, बस ये होता है कि हम कुछ चीज रिवाइज नहीं कर पाते अच्छे से, तो वो होता है बैक ऑफ माइंड होता है, बट एग्जैक्टली नहीं आ रहा होता है। बट देयर इज ऑलवेज हिंट्स, सम हिंट्स रहती हैं वहां पे, मतलब कुछ जैसे एरिया से लिंक हो गया या कुछ हो गया, तो वो चीज जैसे मतलब हमेशा काम में आती है सर। वो मतलब जैसे कुछ भी टॉपिक्स इन जनरल वो लिंक रहते हैं सर, मतलब जैसे आप फील करोगे जब आप पढ़ोगे या फिर जब गैस लगाना होगा, तो सब लिंक रहता है। हाँ, वो हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल हम जैसे पॉलिटी का एग्जांपल है, हमें पता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, स्टेट एग्जीक्यूटिव से हमें कुछ याद आ रहा है, तो शायद हमें लगता है कि अगर एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली पढ़ा है तो वी कैन रिलेट दिस कि शायद ये इस तरीके से है। अगर 1-2 ऑप्शन पता है और एक आदमी कहीं कंफ्यूजन है, तो शायद यहाँ पे जहां हमें रिस्क लेना है वहां जा सकते हैं। बिकॉज इवेंचुअली आई ऑल्सो बिलीव दिस थिंग दैट व्हेन वी लुक टुवर्ड्स ऑल दोज क्वेश्चन, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक श्योर
that you are confident in every single question. At times we are very close to answer, but we are not able to tell ourselves that this is the answer. So at that point in time, some courage is needed. Maybe that courage will come when you keep on practicing for a longer period of time. Maybe these mock tests which you appear in, maybe the test papers which you solve, maybe the number of questions which you have practiced will help you ascertain that what are the kind of methods, kind of tactics, kind of a strategy you can adopt to pinpoint on certain options in order to have a success in the examination. I think almost sir नवनीत ने जैसे बताया 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ऑप्शन में हमेशा डाउट रहता ही है। वो तभी आएगा जब मतलब या तो आप प्रैक्टिस किए हो या फिर आप, क्योंकि ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग देखते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आई शुड नॉट गो इनटू द नेगेटिव मार्किंग, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपने अटेम्प्ट बहुत कम कर दिया और पता चला कि समटाइम्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन एन आंसर बट स्टिल वी मे बी रॉन्ग बिकॉज इट हैपेंस होता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होती है कि उसमें हमने कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिस कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा सा अगर हम देखें आर्टिकल 77 की बात कर दें, राइट, प्रेसिडेंट्स पावर विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्शन ऑफ बिजनेस ओवर देयर। अब उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल डू दिस, वो रूल बनाने जरूरी है और पता चला एग्जामिनेशन में आ गया राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे डू दिस। तो कई बार पढ़ने में उतना डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर पाते, तो हमें पता भी है कि हाँ रूल वाला वहां पर है और फिर भी पता चला गलत हो गया हो। तो कई बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहां पे आते हुए भी गलती करने की चांसेस हैं, तो शायद वो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नीचे ले जाना भी एक शायद अच्छी बात नहीं है। इस मेनली सर मुझे लगता है कि जब भी पढ़ रहे हो आप रिलेट करके पढ़ो चीजों को, क्योंकि चीजें लिंक होती ही हैं। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप एक चीज मिस करोगे तो दूसरा याद आएगा, तो फिर आपको वो भी याद आ जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें, जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कुछ माइंडसेट लेके जाना चाहिए कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर पेपर को देख करके वहीं पर देखें कि जो जैसा है लेट इट हैपन ओवर देन। सर देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो सर एक बेसिक आइडिया हमें रहता है कि हमारी एक्यूरेसी रेट क्या है, वो तब आएगा जब हम प्रीलिम्स से पहले मॉक टेस्ट देंगे। घर पे बैठ के आप अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, तो उससे एक जनरल आइडिया आ जाता है कि हम कितने अटेम्प्ट करने पे हमारे कितने सही हो रहे हैं। दूसरी चीज सर पेपर देख के भी ये चीज डिसाइड होती है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितना है। अगर सर पेपर इजी है तो फॉर श्योर कट ऑफ हायर जाने वाली है, तो वी शुड एम फॉर हायर कट ऑफ। तो सर उसी हिसाब से सर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर पेपर डिफिकल्ट होता है सर देन वी हैव टू टेक अ चांस कि ज्यादा नेगेटिव्स ना हो, ताकि और कम ना हो जाए। तो दैट सर ये इन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट। राइट, व्हाट डू यू थिंक अनिल? सर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें वैसे प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि कितना हम सही कर रहे हैं। और बट एग्जाम में एक माहौल अलग है, वहां पे जैसे श्योरिटी का मतलब नहीं होता और ऑप्शन भरने में थोड़ा झिझक होता है। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट होता ही है, जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो होता है। तो उसके लिए कि सर हम प्री कंसीव नोशन ना रखें एग्जाम में ही। जैसे कई बार होता है कि पीपल लगता है कि सब लोग बोल रहे इजी आया, उस केस में तो आप कम अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई। शायद आप दोनों के डिस्कशन से जो मुझे जिस समझ में आ रही है वो ये है, एक एवरीवन शेल ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मिस्टेक्स नॉर्मली वन कमिट व्हेन वन अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन, एंड इफ वन हैव सम आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन हाउ वी कैन अप्रोच टू दैट क्वेश्चन। और ये चीजें हमें पता चलती हैं जब हमने क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस किया है। लेकिन इनके करने के साथ आप थोड़ा एक ओपन माइंड के साथ भी एग्जामिनेशन में जाइए कि लेट्स face the question paper and let's deal the question paper on that particular day itself for that। इसका मतलब है क्वेश्चन पेपर को लेकर के प्री कंसीव नोशन मत बनाइए, अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो परफॉर्मेंस का तरीका है उसको लेकर के आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील करता हूं, किस तरीके से मुझे नॉर्मली कंफ्यूजन आता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मेरा कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ना कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उस क्वेश्चन को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। आई थिंक दैट्स एन आइडिया, राइट? इफ यू कम टू द एग्जामिनेशन itself over there, एग्जामिनेशन का जो लास्ट टाइम होता है, लाइक स्पेशली जो लास्ट 15-20 डेज होता है, इस 15-20 डेज में ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं खासतौर पे जो नहीं करनी चाहिए हमें, कई बार विच में बिकम डेट्रीमेंटल। दैट्स अ वन क्रिटिकल एस्पेक्ट कि अगर मान लीजिए हम लास्ट के 3 हफ्ते देखें तो इसमें क्या सबसे बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सर सबसे पहली बात तो इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। और लास्ट में आते आते थोड़ा टेस्ट पेपर्स को सर मतलब मॉक टेस्ट को थोड़ा हम मतलब लाइट ले सकते हैं, मतलब थोड़ा अब रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें इंस्टेड की टेस्ट में ज्यादा टाइम दे रहे हैं।
और करंट अफेयर्स पे सर बहुत ज्यादा फोकस करें और फैक्ट्स बेस्ड जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने लिस्ट बना ली है, उसको सर मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। तो ये चीजें, क्योंकि बहुत कितना भी मतलब I do not know, some of you may be having a very good memory power, we say they can recall instantly, but generally on an average basis if we see average student, we study we forget. So better thing is what, sometimes we have a short term memories over there which can last till the examination takes place over there. So maybe it's better idea to utilize those last 4 days, 5 days, a week or 10 days, whatever it is there, especially in order to go through those information which are right more fact oriented, more information oriented, जहां बहुत सारी information को पढ़ना है, because in the prelim examination one more part is there, right, that width is also important as the depth in the certain area is important. तो शायद दोनों चीजें करना है, in depth coverage and as well as a broad coverage. क्या अनिल आपका आइडिया? सर मुझे कुछ इश्यूज और लगते हैं कि पहली चीज कि हमें कभी भी अगर हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर टेस्ट और वो दिन आपका कैसा है बहुत ही डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा चीज है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे साथ लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये पढ़ लिया वो, तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ो, उसी को रिवाइज करो और फिर उसी बेसिस पे एग्जाम दो। ऐसा नवनीत ने कहा, नया मटेरियल एंड के दिनों में तो सर नहीं पढ़ना चाहिए, रिवाइज अगेन एंड अगेन। राइट, 3 खास बातें वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। एक सबसे बड़ी क्रिटिकल बात ये थी कि वन शुड नॉट बी डाइग्रेसिंग टू मच फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। यहाँ पे फोकस रिवीजन पे ज्यादा होना चाहिए, पढ़ी हुई चीजों को दोहराने पे ज्यादा होना चाहिए, ना कि नई चीजें पढ़ने के लिए। और अगर नई चीज हम पढ़ भी रहे हैं तो एक तरीके से हम थोड़ा देख सकते हैं, हमने एक फौरी तौर पे एक तरीके से निगाह डाली ताकि अगर मान लीजिए कुछ सुपरफिशियल क्वेश्चन आए तो शायद हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं लेना है कि सारी चीजें मेमोराइज हो जाए। नंबर 2, खासतौर पे ये वो फेज है जहां पर यू शुड नॉट बी वरीड टू मच अबाउट हाउ अदर पीपल आर परफॉर्मिंग ओवर देयर। तो बहुत ज्यादा दूसरों को देख करके इस तनाव में नहीं आना है। सडनली डोंट कम इनटू दैट काइंड ऑफ राइट मोड वेयर यू गेट डिप्रेस्ड दैट मे बी दे आर एबल टू स्कोर बेटर। और ये खासतौर पे जो आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरी मॉक टेस्ट में, उसके लिए शायद मैं जो स्टूडेंट्स को कहता हूं कि उसका सबसे बेस्ट यार्डस्टिक जो है वो ये है कि ये मत सोचो कि हमने कितने आंसर दिए हैं, ये सोचो कि हमने जो पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। और हम बहुत सारी बात ये भी देखते हैं कि इसका इसलिए भी मुझे लगता है, आई विल टेक यू टू पीपल्स ओपिनियन ऑन दैट, कि हम जब बहुत सारे जो प्रैक्टिस पेपर्स देखते हैं, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन हम शायद ये देख रहे हैं कि हम जो पढ़ते हैं उनसे हम क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वहां पे भी जो आएगा हम शायद उसके आंसर भी वहां पर दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं कि मतलब सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो जाएंगे। कुछ का फ्रेमिंग एक जैसा नहीं होता, अलग फ्रेमिंग हो गया, कुछ की इंफॉर्मेशन कुछ है कुछ नहीं है। अल्टीमेटली शायद हमने जो पढ़ा है क्या हम उससे आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, वो शायद बेस्ट जज है ये देखने का कि हमारी तैयारी सही हो रही है। एग्जैक्टली सर, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यूपीएससी में कभी भी आप, जैसे हम जितने प्रैक्टिस करते हैं जनरली वो क्वेश्चन कभी दिखते नहीं है, एक दो फ्यू क्वेश्चंस को छोड़ के। तो मेन यही होता है कि हमने जितना पढ़ा है वो हम आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पे हमारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया जरूरी नहीं है यूपीएससी सेम ऑप्शन बने, और बहुत ही कम चांस है कि सेम ऑप्शन आए। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमने थॉरोली पढ़ा है कि नहीं। अनिल सर, नवनीत, सर आई वुड लाइक टू ऐड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर हम देखें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो मेजर यूज होता है सर हमारी नॉलेज का वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में होता है। राइट, तो जो हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है कि जो पढ़ा है उसमें से नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज जरूर यूज आएगी प्रीलिम्स में। और दूसरा ये भी है कि क्या ऐसा भी होता है, एक स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि जब कई बार टेस्ट सीरीज में आप अपीयर हो रहे होते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको जो टेस्ट मिल रहे होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जानबूझ के भी कुछ डिफिकल्ट नेचर के आ जाते हैं, या ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो क्या टेस्ट कर देते समय जैसे कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं तो क्या उसको इस बेस पे जज करना चाहिए कि कितने हम क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाए इन ऑर्डर टू सी वेदर द डिग्री ऑफ लाइक दिस क्वालिटी वाज बेटर और नॉट, क्या इसके बेसिस पे जज करना चाहिए? हाँ सर, ये बहुत सही बात है कि कुछ टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि दिखाने के लिए दे आर बेटर, कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कभी प्रीलिम्स में पूछे ही नहीं जाएंगे। राइट। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें अपनी प्रिपरेशन को, सही बात है, इस चीज से कॉज करना चाहिए कि हम अपनी जो हमने पढ़ा है उस चीज का यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। राइट। अगर हम उसी नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं फिर तो मतलब सर
फिर प्रॉब्लम हाँ है। प्रिपरेशन में कहीं हम मिस हाँ, कर रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं हो रहे, वो हमने नहीं पढ़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, जैसे सिविल सर्विसेज में हम नॉर्मली अनिल देखते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कोई रिपीट हो रहे हैं, एरियाज रिपीट हो सकते हैं, राइट, मतलब बट एज इट इज क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन उस तरीके से हो रहा है, खासतौर पे जनरल स्टडीज में हम देखते हैं। तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिग्निफिकेंस हम किस रोल में देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनका? सर उनका सिग्निफिकेंस स्पेशली जो है कि एक तो है आपको फील आएगा यूपीएससी के पेपर का, राइट, कि आपको लगेगा कि आप हाँ यूपीएससी का ही पेपर दे रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम हॉल में जाएंगे तो उतना डर नहीं रहेगा, एक फैमिलियरिटी आ जाएगी। सेकंड चीज है कि सर यूपीएससी का ही पेपर दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो फंडा है वो आपको अच्छे से सीखने मिलेगा कि किस टाइप की मिस्टेक, और कुछ जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स होते हैं, एनी, ओनली, आप इनका मतलब समझ पाओगे कि ये जब बातें जनरली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जनरली इनका क्या गलत है कि सही है। मोस्टली मतलब जैसे कि जो क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं ज्यादातर उनसे हमें आंसर निकलता है कि ये नहीं पॉसिबल है। जैसे ओनली लाइंस आर हियर, मतलब एशियाटिक लाइंस आर ओनली इन इंडिया, तो इसमें मतलब स्टेटमेंट से ही एलिमिनेशन में सर बहुत हेल्प होती है स्पेशली, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें दोनों चीजें सिग्निफिकेंट है, क्या जो सही है उसमें से आता है, क्या जो गलत है उसमें से आता है, दोनों में से कितना कितना आता है। सो व्हाट एग्जैक्टली राइट दिस एज अनिल वाज पॉइंटिंग आउट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैव देयर ओन significant role to play, but don't try and solve those question papers only, right, thinking as if some of those question as it is will be repeated in the examination. But please friends remember, repetition when we say is of two nature. One is the question gets repeated, and B is what the experience gets repeated, the area gets repeated, the information in the different form gets repeated. So apart from the as it is repetition of the question, there are the other facets also, because when we solve the question from the particular area, for example, if you are solving the question from the environment, today the ecosystem and ecology particular type of question may have come, next time other type of question may come, this time one wildlife sanctuary, one national park may come. So it gives you an idea that the question comes from those areas. So when you study, you need not to study only that area, you study other areas also. Last time from the same wildlife sanctuary the question may have come from species, next time the question may come with respect to the right this other aspect. Example, say for example we talk about the vegetation aspect, the right, the first time it was from the flora, next time it may be from the fauna. So the question nature of question also may get changed. So most importantly, previous year question papers gives you an idea that what kind of a mindset the only the UPSC goes with while asking the question over the period of time. ये आपको करंट अफेयर्स के लिए भी आइडिया देते हैं कि नॉर्मली करंट अफेयर्स में किन तरीके की न्यूज को यूपीएससी ज्यादा पिकअप करता है। वो इशू भले ही वापस नहीं आएगा, लेकिन उस समय अगर ये न्यूज में चल रहा था तो किस कंटेक्स्ट में था, किस कंटेक्स्ट में वो इंफॉर्मेशन बाहर थी, और उन तरीके की न्यूज जो है वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर इसमें हम न्यूज वाली बात कर रहे थे तो करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर अब हम जैसे देखते हैं तो प्रीलिम्स के लिए खासतौर पे न्यूज़पेपर कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है, और ये लास्ट 50 डेज में पर्टिकुलरली? सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लास्ट के टाइम में हम थोड़ा न्यूज़पेपर को कम टाइम दे तब भी चलेगा। इट्स बिकॉज कि न्यूज़पेपर में ज्यादा टाइम एडिटोरियल पढ़ने में लगता है, तो हम प्रीलिम्स मतलब एडिटोरियल को थोड़ा स्किप करके हम थोड़ा फैक्चुअल चीजें हम न्यूज़पेपर में से कर सकते हैं, जो कि हमारा आधे घंटे में हो जाना चाहिए। अदरवाइज सर अगर न्यूज़पेपर के अलावा हम डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज अगर फॉलो करें तो उनमें भी हमारा कंसाइज वे में करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर की इतनी ज्यादा मतलब सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर लास्ट के टाइम में, according to sir my experience. I may be wrong sir. No, it's see this, as we have already discussed that everybody has their own fair share of tweaks in the strategy, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं चलते, लेकिन हमने देखा है like people have different takes on that, but I personally believe that as many number of successful aspirants are there, as many number of successful candidates are there, that many number of successful strategies can be there, and this is for the 1 year, for the other year then can be other successful strategies. So our purpose is not to tell you that what is the best strategy. Our purpose is to tell you how the successful people may have followed the certain strategies from which you can learn lot many number of things over there, right? So they are only sharing their experiences over there. Eventually you are the best judge to identify what is best suited to you, right? Anil, we were talking about this and I think you have a slight fair bit of an experience in that part. आपने इतनी बार जो करंट अफेयर्स को डील किया है तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स के लिए करते थे? खासतौर पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। yes, तो लगता है कि इसमें से कितना याद रहेगा। तो एक वो फैक्टर होता है याद करना और एक फैक्टर होता है पढ़ना।
तो वी हैड टू स्टडी एंड वी हैड टू रिटेन आल्सो सम ऑफ दोस इंफॉर्मेशन। तो क्या उसके लिए कुछ तरीका, कुछ ऐसा कुछ है कि कुछ फॉर्मूला वगैरह, कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बना सकते हैं? सर स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग में ही खुद के नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स से ये होता है कि जो हमने खुद से लिखा होता है तो कुछ सोच समझ के हम लिखते हैं, वो जल्दी याद रहता है। मोस्टली यही रहता है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि खुद के नोट्स जल्दी याद रहते हैं और ज्यादा टाइम तक रिटेन भी होते हैं। और दूसरा चीज है कि सर न्यूज़पेपर मुझे भी लगता है कि 15-20 दिन पहले से छोड़ देने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी अगर पेपर बनाता है तो टाइम लेता है। वो उतने टाइम में सर जैसे 1 मंथ तो आई थिंक दे माइट हैव टेकन, तो उतने टाइम से पहले आप छोड़ सकते हैं न्यूज़पेपर। और बट हाँ ये चीज और भी है सर, मुझे लास्ट के जो 2-3 मंथ्स होते हैं उनमें से अगर ज्यादातर क्वेश्चन जो करंट के परसेंटेज वाइज देखें तो वो वहां से होते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी अच्छे से और ज्यादा पढ़ लेनी चाहिए। और जो न्यूज पेपर के अलावा जैसे एग्जांपल के लिए हम जब इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे होते हैं तो वो मेन इशू है कि स्टूडेंट्स को जब इतनी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको रिटेन करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या इस टाइम पर? इस टाइम पे तो सर मल्टीपल रिवीजन ही रिटेन करवा सकते हैं। Yes, और क्या ऐसा भी होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि हमें याद नहीं हुआ है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो शायद वो क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ट्रिगर, and when the question acts as a trigger the information automatically comes out. Example के लिए कई बार क्या होता है ना, when we are seated in abstract and somebody asks a question without giving an option, maybe we are not able to answer the question, but if we have 4 options given there, then suddenly the answers may come out. Yes sir, it happens because we have answer in front of us. Right. तो ऐसा होता है कि हमें याद आता है हाँ हमने ये चीज पढ़ी थी और उसके साथ ये ऑप्शन था, तो फिर ये चीज होती है। और मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि इसकी वजह से ही क्वेश्चंस हो पाते हैं वहाँ पे। तो वही सर जैसे मैं बोल रहा था कि लिंक करके पढ़ना चाहिए। जैसे हमने कुछ वो टॉपिक आया उसको कहीं से लिंक करके किसी भी अपने दिमाग से कुछ भी फनी इफेक्ट भी बना के हम रिवाइज कर लेते हैं, और वही अगर क्वेश्चन आ गया हमें वैसे याद नहीं है, लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें याद आ जाता है। Right. Yes. Ultimately, point is that, friends, that see this. If you are approaching the civil services prelims examination, please do remember you are not going to study some say 10, 15, 20, 100 odd information. You are going to study the ample amount of information, number of different information given from the different places. So the better idea is what when you study with focus, study with concentration. Number 2 is this: if you are comfortable, you can get certain key information noted somewhere, so that if there is a small little amount of time is available, if you want to revise it quickly, you can revise that, but it's up to you, right? What kind of a strategy you think is more proper for you. Number 3 is what we also have a number of compilations available, monthly compilations, annual compilations. 1 or 2 of those compilations you can pick up and you can go through this. So because right, some sort of a kind of a revision is over there, because एक बार हमें देख लिया, पढ़ा हुआ है, फिर रिवीजन हो गया. But while you are studying this, I think right, Navneet and Anil, the best part should be this: ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि कितना याद हुआ है. पढ़ने पे मेरे ख्याल से एक कंसंट्रेटेड स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि बजाय इसके कि सोचने कि इसमें से कितना याद हो गया मुझे. अगर आप याद करने बैठोगे तो शायद आज याद करेंगे, कल भूलेंगे. समझने का सर मेन पॉइंट है कि आप समझे कि नहीं टॉपिक को, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. याद अगर आप समझ गए तो याद ज्यादा टाइम रहेगा, अगर समझे नहीं तो याद नहीं रहेगा सर ज्यादा. अच्छा, कुछ ये जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, कैन स्टूडेंट हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी? आपने अगर ऐसा कुछ किया हो अनिल एंड यू टू, कि हम जैसे प्रोग्राम्स पॉलिसीज पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो गलतियां होती हैं हम कई बार देखते हैं उसमें नोडल एजेंसी वाली गलतियां हो जाती हैं. एक टिपिकल ये हमें शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आइडिया देता है कि यूपीएससी फ्रेम्स व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस रिलेटिवली मोर ऑफन. वो पॉलिसी चेंज हो सकती है, प्रोग्राम चेंज हो सकता है, नया स्कीम आ सकता है, लेकिन शायद क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका वो सेम हो जाता है. तो क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हो सकती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक ये, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई एक नई स्कीम देखी एंड द स्कीम इज हैविंग लाइक रनिंग इनटू द 3-4 पेजेस, तो उसमें से कोई ऐसे 2-3-4 पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट दे कैन हैव कि अगर यहां से आता है तो ये की एरियाज है जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है. लाइक एग्जांपल जैसे हम इंटरनेशनल रिपोर्ट देखते हैं, हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ थीम और दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, एन एग्जांपल व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया, और इफ इट ऑल राइट इफ यू कैन रिमेंबर द नेबर्स एटसेट्रा. तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं लिखना या ऐसा कुछ? सर जैसे ये चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो इसमें 2-3 चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी. एक तो उस गवर्नमेंट स्कीम का टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है. तो ये अगर हम चीजें ऐसे ही सब इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उसको हेड कौन करता है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन और नॉट, राइट.
इट्स हेडक्वार्टर, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर ये चीजें हमें प्रीवियस ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं nowadays we have seen पिछले कुछ सालों में इस तरीके का भी आता है, जैसे वो वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन और नॉट। तो कई बार क्या वो लगता है कि लाइक जैसे क्वेश्चन आया था IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो लगता है कि वो शायद ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो ये शायद इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हैं उसको। एक्चुअली सर मेंस के सिलेबस में जैसे यूएन एंड इट्स बॉडी मेंशन्ड है, तो ये जो टॉपिक्स है इसलिए इस तरह से लिंक भी है कि हमें अगर यूएन मीन्स में सपोज की मेंशन्ड है तो उससे लिंक बॉडीज वगैरह हमें पता होना चाहिए। स्पेशली सर जो जैसे WEF है वगैरह, उनकी कोई रिपोर्ट आ रही है तो क्या क्या पैरामीटर हैं उनमें जिनके बेसिस पर रिपोर्ट बन रही है। अच्छा, करंट अफेयर्स में ऐसे एरियाज को भी हम प्रिपरेशन का कितना फोकस रहता है? लाइक एग्जांपल भी से कि इंफॉर्मेशन तो बेसिक नेचर की ही है लेकिन वो करंट से गाइडेड हो रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पॉलिटी का ही ले ले, अभी जैसे 10th शेड्यूल काफी न्यूज में चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए एंटी डिफेक्शन का हम देख रहे हैं कि डिफेक्शन को लेकर के न्यूज में कवरेज ज्यादा है। तो या जैसे हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले 10th शेड्यूल में स्पीकर को रोल को लेकर के काफी न्यूज में था। तो क्या जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे कुछ एरियाज भी आइडेंटिफाई करने के जो न्यूज में बहुत ज्यादा थे लेकिन स्टैटिक नेचर के, एग्जाम्पल के लिए जैसे 10th शेड्यूल पढ़ लिया या स्पीकर पढ़ लिया, तो क्या ऐसी भी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? सर एक्चुअली ये होता है कि जो भी करंट में है उससे रिलेटेड स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा। और अभी हम प्रीलिम्स का पैटर्न देखें तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है कि जो करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक ओरिएंटेड ही होते हैं, जिसमें हमारी स्टैटिक की नॉलेज लग रही होती है। तो इस चीज को लिंक करके तो बहुत जरूरी है पढ़ना सर। हाँ, स्पेशली सर जैसे पॉलिटी वगैरह टॉपिक्स हैं वहां पर करंट का नहीं पूछते ज्यादा, बट वो जो करंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। है इंफॉर्मेशन करंट कंटेम्परेरी, पर क्वेश्चन वो हमारा जो स्टैटिक नेचर वाला एरिया है वहां से, तो हम उसको बोलते हैं बेसिक क्वेश्चंस आर देयर, स्टैटिक क्वेश्चन पर गाइडेड बाय द करंट इश्यूज, वो उसको लेकर के चल रहे हैं। राइट, इफ यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर देयर, ये पूरी जो जर्नी है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि रोज हम लगता है कि जब जैसे हम क्वेश्चन करने बैठे एंड एज वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, जैसे ही 2-4 नहीं बनते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग डिमोरलाइज कि यार ये तो आ ही नहीं रहा है, गलत हो रहा है। तो उस समय फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड इज अ की पॉइंट। सर जो मुझे लगता है कि जैसे 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो कुछ एरिया स्पेसिफिक, जैसे आप हिस्ट्री के कर रहे हो सकता है कि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तुम डीमोटिवेटेड वहां पर हो जाते हैं। बट स्पेशली एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि कुछ पेज में आपको नहीं आया, गलत हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे मुझे जो लगता है मैं स्किप कर देता था कि ये क्वेश्चन टफ है, कुछ बंचेस यूपीएससी भी जानबूझ के रखता है चेक करने के लिए, और अगर हम वहाँ प्रेशर में आ गए तो हमारे जो आते हैं क्वेश्चन वो भी डेफिनेटली गलत हो जाते हैं। तो मैं तो सर स्किप कर देता हूँ, फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है आगे करके तो फिर भी वापस आ जाओ दोबारा उस पर। यस सर, ये जो खासतौर पे ये वाला जो पोर्शन है तो वो कैसे जो होता है ना कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, हमें लगता है कि ये इससे नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसको मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रख सकते हैं? सर सेम चीज है, जैसे अब क्या होता है सर, सेट भी अलग अलग होते हैं। किसी सेट में क्या हो, अगर अनफॉर्चुनेटली कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब पहले ही आ जाए तो हमें लगता है जैसे 10-20 क्वेश्चन करेगी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये नहीं है कि हम वहां पर हार मान जाए, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है सर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप छोड़ दीजिए, आपको जरा सा भी डाउट है पहले राउंड में आप छोड़ दीजिए। अब पूरा पेपर एक बार स्कैन करिए, पूरा पेपर करिए, पहले राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करिए जो आप लगता है कि हाँ आप ये सही है। तो सर उससे आप देखेंगे कि अगर अच्छे से वेल रेड है तो आप 50% कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। हाँ सर, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और फिर सर नेक्स्ट राउंड में आप mindset I think is very important in the examination, because वो कई बार क्या होता है ना, if the performance is going better in going in better direction, तो फिर वो अपने आप थोड़ा सोचना भी बेटर हो जाता है। माइंडसेट तो सर बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए एग्जाम में, स्पेशली अगर क्वेश्चन नहीं आते आप फिर भी किसी लॉजिक से निकाल ले जाते हो अगर माइंडसेट पॉजिटिव है। अगर हम डीमोटिवेट हो गए तो जो आता है डेफिनेटली गलत होता है, वो भी गलत होने लगता है। खासतौर पे क्या होता है कि फिर हम थोड़ा वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे होते और हमारे दिमाग में वो चीज चल रही होती है कि मे बी मेरा तो अब नहीं होने वाला, ये हाथ से गया। तो वो शायद उस समय अपने आप को वी हैड टू होल्ड आवरसेल्फ लाइक इन दैट वे कि थोड़ा टैकल करना है, ऐसा नहीं है। तो एग्जामिनेशन में जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए, लाइक हाउ टू अप्रोच एंड मैनेज दिस एंटायर टाइम ऑफ द क्वेश्चन पेपर? सर एक तो सारे कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया हम करेक्ट को मार्क कर देते हैं। राइट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और अगली चीज सर यही है कि मतलब कोई भी अगर गलत हो रहे हैं, नहीं आते तो छोड़ दीजिए और मल्टीपल राउंड्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। आप देखेंगे जब पहले राउंड के बाद आपके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे जो आपको आते हैं, दूसरे राउंड में आप
और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उठाएंगे, आप बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट गेस कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। राइट राइट। तो ये जो पहला पार्ट आपने बोला ना, आई हैव सीन मेनी अ स्टूडेंट कमिटिंग अ मिस्टेक देयर इन द एग्जामिनेशन। पता चला कई बार ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट इनकरेक्ट, और कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है और हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं वहां एक और सबसे बड़े ज्यादा देखा हमने, ऊपर लिखा ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर बाद में लिखा होता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ऊपर लगते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें लगता है कि शायद करेक्ट वाले में ही जा रहे हैं। तो शायद मेरा मतलब मेरा ये मानना है अनिल कि हमेशा जब हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, तो मेरा सजेशन है उसको सर्कल कर लो पहले। ये जो चीज है ना, जैसे नॉट है तो नॉट को सबसे पहले सर्कल करो, इनकरेक्ट को सबसे पहले सर्कल करो, कि हम उसमें जो पूछ रहे हैं वो करेक्ट से वहां पे गलती नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें लगता है कि पहला ऑप्शन आया ये करेक्ट है, हाँ शायद यही करेक्ट है, गो इनटू दिस। जनरल ट्रेंड वही है सर कि वो करेक्ट पूछते हैं तो इनकरेक्ट कभी कभी आ जाता है। तो हम मिस कर जाते हैं, ऑफन मिस कर जाते हैं। तो उसमें सर स्पेशली अगर इनकरेक्ट पूछा तो मार्क कर ही लेना चाहिए। राइट राइट। और सर अटेंटिव का जैसे हम बात कर रहे थे, तो जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन पेपर में जैसे 2 क्वेश्चन थे इस बार, जैसे अशोका का पिलर का, और वो पूछा था क्वेश्चन हरप्पन साइट, तो उसमें 1-2 ऑप्शन कॉमन थे और वहां से आंसर आ रहा था। तो अटेंटिव मतलब एग्जाम में रहने का मतलब बहुत ही जरूरी है कि भले ही आपको सारा नहीं पता, नहीं कई बार एग्जामिनेशन में ऑप्शंस आई थिंक काफी हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन आई कैन रिकॉल दिस, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का आया था, अब तो नाम चेंज हो गया है, नाउ वी गॉट नेशनल गंगा काउंसिल। तो उसमें लिखा था कि वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हेड्स दिस, शायद वो थर्ड स्टेटमेंट में दिया था, एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वी ऑल नो, और वो इनकरेक्ट हो गया, और वो इनकरेक्ट वाज गिवन इन द 3 ऑप्शंस। सो आई थिंक एक्चुअली द स्टूडेंट शैल टेक अ कॉन्फिडेंस इन दैट आल्सो, कि जो पढ़ा है शायद हो सकता है कि इवन इफ आई नो 1 or 2 ऑप्शन, मे बी इट विल हेल्प अस सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा अनिल कुछ और सजेस्ट करेंगे आप स्टूडेंट को कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो कुछ राइट कुछ स्पेसिफिकली ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कुछ चीजों को लेकर के? सर कुछ चीजों के लिए एक सर हाँ जो मैंने देखा है कि पहली चीज की पेपर अटेम्प्ट करते समय जल्दबाजी ना करें, जो रोल नंबर वगैरह भरते हैं अच्छे से भरें, क्योंकि अगर वहां पे आपने गलती से एक भी मिस्टेक करी तो आप इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरा कॉपी चेक होगा कि नहीं। उसमें फिर हम प्रेशर में इतना आ जाते हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, तो मतलब एक्सपीरियंस के साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आराम से रिलैक्स होके, उसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है, बट अच्छे से करें और हाइड्रेटेड वगैरह तो अच्छे से रहें, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और वो सब चीजें सर कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत असर करती हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, बट ये छोटी सी चीज है, बट अनिल जैसे हम एग्जांपल के लिए सपोज इफ वी गो इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड इफ वी व्हाट वी शुड कैरी विद आवरसेल्फ, लाइक कभी कभी होता है ना कि ये नहीं है, पेन का पेंसिल का कुछ आउटकम हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ ध्यान में पहले से रखना चाहिए, रेडी रहना चाहिए इसके लिए? सर एडवांस में ही हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें कितनी चीजें वहां पे एग्जाम में नीडेड होंगी, और वो सब एडवांस में ही हमें रख लेना चाहिए एक रात पहले, सो दैट कि अगले दिन सोचना ना पड़े और हम सीधे जाके बैठे और कॉन्फिडेंस में रहें। ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें सुबह, क्योंकि सुबह जब पढ़ते हैं तो कुछ मिस हो गया, अरे ये तो भूल ही गया मैं, फिर जो प्रेशर बनना शुरू होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में भी दिख जाए। तो आप पॉजिटिवली ले सकते हो, आप पेजेस को पलट लीजिए, देख लीजिए, पर ये ज्यादा इसका प्रेशर ना लेंगे कि क्या छूट गया है। ये देखो कि क्या हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, शायद ये आउटकम होना चाहिए कि इन द मॉर्निंग 1 hour, 1.5 hour, 2 hour, व्हाट एक्स्ट्रा आई कुड गो थ्रू, या शायद इसके लिए एक मेरे ख्याल से बेटर स्ट्रेटजी भी हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक नवनीत ऑन दैट फ्रॉम द अर्ली डेज इटसेल्फ वन शुड प्रिपेयर कि लास्ट के 2-3 दिन में क्या करेंगे और एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या रिवाइज करना है। तो मे बी अगर उसकी लिस्ट पहले से बना लें हम, हमारे पास रखा हुआ कि हमें पता है मॉर्निंग में जैसे हम तैयार होंगे और एग्जाम के लिए निकलेंगे तो हम इसको उठाना है, सिर्फ इसको पढ़ेंगे, बाकी किसी को नहीं पढ़ेंगे, तो मे बी वी विल बी एबल टू सेव मोर टाइम देयर। एग्जैक्टली सर मेरे केस में तो मैं तो सर जो नेशनल पार्क्स हैं और ये जो फैक्चुअल चीजें हैं सारी, इनको सर मैं ट्रैवल करते हुए पढ़ लेता था, और तो मतलब ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता क्योंकि ये बस याद करनी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। वन लास्ट दिस एग्जामिनेशन सेंटर का भी रहता है, शुड स्टूडेंट विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर? और सर मैंने तो कभी नहीं किया है। अच्छा, बट सर सही रहता है अगर वो ना करें, कोई और कर ले उनका रिलेटिव, ताकि क्योंकि कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे वो ढूंढने वगैरह में कुछ टाइम का मिसमैनेजमेंट हो गया, फिर वो कई बार बहुत प्रेशर बहुत आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। स्पेशली हाँ सर, मुझे भी लगता है कि मैप पे हमें चेक कर लेना चाहिए एक दिन पहले। अगर सिटी में है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मिल जाता है, बट कभी कभी इनसाइड अंदर की तरफ होता है सेंटर, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होता है ढूंढने में, क्योंकि हम
Nowadays we have a help of various services. Google has got like this and other kind of, and moreover nowadays the transportation have also improved, especially in the metro cities. But still like it's in up to an individual to like make sure कि आप कितनी जल्दी इन चीजों को लेकर के पैनिक होते हैं. कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े रिलैक्स होते हैं, उनको पता है कि ठीक है मिल ही जाएगा सेंटर में, पहुंच ही जाऊंगा वहां पर, और इनके पास कई बार टाइम भी थोड़ा एक मार्जिन रहता है. आई वुड एडवाइज, मतलब ये मेरा एडवाइस है शायद, कि वो जो हम एग्जामिनेशन के पहले 30 मिनट घर पर एक्स्ट्रा रख रहे हैं, शायद वो 15-20 मिनट 30 मिनट हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि टाइम तो हमारे पास ही है, वहां भी खड़े होंगे. और कई बार मैंने देखा है कि इफ यू हैव अ स्लाइटली मोर टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन इन द आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, तो शायद उसको हम यूज भी कर लेते. अगर 10-15 मिनट है तो हम वो खड़े खड़े जल्दी जल्दी में ही निकल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो शायद यूज भी कर सकते हो कि चलो उस समय लास्ट में कुछ 4 पेजेस पलटने हैं, तो दैट कैन बी डन. सर उससे इंपॉर्टेंट थिंग मुझे ये लगती है, जब आप एग्जाम सेंटर में पहले पहुंच जाते हैं तो स्ट्रेस को आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं. राइट. वो दैट व्हाट वी से कि ये थोड़ा होता है ना कि हम देख चुके हैं, थोड़ा देख चुके होते हैं, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है. आधे घंटे में पता लाइक एग्जांपल, जैसे अब यही सारी चीजें हैं, व्हेन वी फर्स्ट फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, लगता है कि पता नहीं कहाँ देखें कहाँ नहीं देखें, लेकिन वही जब 10-15 मिनट होना शुरू होते हैं तो मे बी वी आर स्लाइटली मोर कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज इट हैपेंस विद एवरीबॉडी. सो मे बी गेटिंग फेमिलियर विद द सराउंडिंग is one of the key aspect also, right? Because see this, what is my, like, especially those two distinguished guests, their gist of this is that one should be familiar with the examination, not only the examination content wise with respect to the what kind of a question comes, not as it is the question, and even remember what kind of a problems one may encounter with, right? So एक तरीके से if you, while having those conversations with anybody else who may have appeared in the examination, if you can find out that what normally the kind of a pressure the people may go through in terms of example, what are the necessities over there, तो वो उन चीजों से बचा जा सकता है. दूसरी बात क्या है, ज्यादा essentials पे फोकस करें आप, that what are the more essential things over there, कि बिना इसके काम नहीं चलेगा, वो तो कम से कम आपके पास होना चाहिए, बाकी सारी चीजें चल जाती है. आप कुछ नोट्स नहीं ले गए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले गए, ठीक है, वो क्योंकि लास्ट मिनट पे बहुत ज्यादा माइलस्टोनिक डिफरेंस क्रिएट करना शायद आई डोंट थिंक that will be possible, especially kind of a examination civil services it is over there. कि ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में बहुत ज्यादा बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा है अनिल? नहीं सर, कुछ नहीं पड़ेगा, बट हाँ मैं कहना चाहूंगा कि सीसेट भी जरूर प्रैक्टिस करके जाएं. ये बिल्कुल हल्के में ना लें. ये जो 50 दिन है इसमें सीसेट को कुछ देखना चाहिए, 1-2 दिन तो कम से कम. I would say कि that depends on the aspirant. If he is having a background in CSET, then he should practice 4 to 5 previous year question papers. If a person is not aware of the topics, he should dedicatedly prepare, like he should give time to the CSET and not take it lightly, as Anil pointed out. Right. See this as like it's a both of them, they are saying that point is very simple, that we need to see the examination holistically. You cannot see the examination in bits and pieces, and most importantly, if you commit mistake in one part of the examination, it would result in failure in other part of the examination also, because examination is in totality. So agar you are the best judge of your own preparation there. अगर आपको लगता है कि सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ डिफिकल्टी, एंड स्पेशली इफ यू आर अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई वुड एडवाइज यू कि आप थोड़ा उसको एक बार देखें पेपर को, उसके कुछ एरियाज की तैयारी करें. और हमेशा जो है खासतौर पे जब क्वालिफाइंग पेपर होता है तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइंग के लेवल तक ही ना फोकस करें, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर को भी लेकर के चले, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो माहौल होता है वो हमसे कुछ गलतियां करा देता है. तो हमेशा जो है ये जो कट ऑफ का माइंडसेट होता है, एग्जाम्पल के लिए इस बार अगर हम देख रहे हैं कि 98 की बात करें तो ज्यादा 99, 100, 102 सिर्फ इतना फोकस लेकर के ना चले, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर भी लेके चलना चाहिए. Right? So this was some of the discussion we did have over there, but before we part ways, would ask both of those two distinguished guests to share the final piece of advice with respect to the prelims examination, especially what shall be the 3 key, right? Key mistakes one should not do, in what are the 3 key, right, things which one should do in those 50 days. I'll put in that way over there. If Navneet, you would like to point out. Yes sir. Like earlier we pointed out that कि नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी है, कुछ भी नया स्टार्ट बेसिक से नहीं करना है. दूसरी चीज पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, और किसी से कंपेयर नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन को, और जो भी टेस्ट में आपके नंबर आए हैं उसको लेकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. करना क्या है कि आपको अपने रिसोर्सेज जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं उन्हीं को ही रिवाइज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ना है. पहले ही आपको फैक्चुअल चीजों की लिस्ट बना के रख लेनी है जो कि आप लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ेंगे,
और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है अलॉन्ग विद द टेस्ट पेपर्स। तो ये डूज एंड डोंट डूज हैं। मुझे लगता है कि नवनीत ने ज्यादातर कवर कर ही दिया। इम्पोर्टेंट चीज मुझे भी लगता है इसमें एक्स्ट्रा यही है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई डीमोरलाइज कभी ना हो, बस कॉन्फिडेंस में जाएं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा ये सबको कि आप कॉन्फिडेंस होके जाएं, क्योंकि उस दिन जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट पेपर आपने जैसे दिए हैं वैसे ही आए। ऐसा हो सकता है कि जो जैसे आपको पढ़ने की स्टाइल हो या जैसी चीजें आपको ऑप्शन वाइज पसंद हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था, वैसे ही आ जाए। क्या पता, बस कॉन्फिडेंस रहे और होपफुल रहे कि यार होगा मेरा और मैं मतलब जी जान से पेपर दें। Yes, sir. That's correct. In fact, Anil has got an experience in that part in terms of like he has been qualifying prelims, but initially he could not make it to the final selected list. But eventually, obviously, if you work hard, the result sooner or later it is going to come because your efforts are not going to go wasted. They will yield the result. So also keep in mind, say, these are the gentlemen sitting in front of you, and you know this that they have achieved the success not right by simply studying for some like say meager amount of time, 1 month, 2 months, just going through having a particular say any particular trick or so. Because when it comes to the UPSC civil services examination, there is no such kind of a tricks that certain tricks may help you in order to solve the questions like 1 question, 2 question or 3, 4 questions, right, Anil? But it would not help you in solving right the questions which we need to solve in order to qualify the prelim examination. So important point, one important question we missed, Anil and Navneet, that especially with respect to nowadays an online platform we have. Yes. और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और खासतौर पे प्रीलिम्स के टाइम पे क्या होता है, मेनी पीपल राइट सडनली आउटसाइड दे फ्लडेड विद द पेपर नोट्स आल्सो एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आल्सो। तो अब आज के पहले तो क्या होता था ना, लिमिटेड होता था। अर्लियर द स्टूडेंट यूज्ड टू वरी दैट वी डोंट हैव टू मनी इन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब तो वहां पता चला पीआईबी से भी आ रहा है, वही फिर वो कहीं और से भी आ रहा है। तो फिर स्टूडेंट को क्या अप्रोच लेके चलनी चाहिए इसमें? सर मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वैसे मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपका एक प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, आपने वो पढ़ लिया। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा नॉलेज कम है और कई सारे सोर्सेस आ रहे हैं, तो आप केवल उनमें से वही टॉपिक पढ़िए जो प्राइमरी सोर्सेस में कवर नहीं है। उससे क्या होगा कि 10% से हार्डली 10% से ज्यादा कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उस 10% में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन आप पूरा सोर्स ही अलग पढ़ रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर टाइम नहीं होता हमारे पास। और ये ऑनलाइन और अगर ऑफलाइन को देखेंगे तो इसमें कुछ कैन दे हैव अ काइंड ऑफ अ लिटिल बैलेंस्ड अप्रोच फॉर दिस ऑनलाइन ऑफलाइन? सर मुझे ये लगता है कि हर इंडिविजुअल पे है ये चीज कि किसी को बुक डायरेक्टली से पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को ऑनलाइन में ज्यादा बेटर लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो से ज्यादा बेटर लग रहा है। तो सर वो मुझे लगता है इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। व्हाट इज योर टेक, Navneet? Sir, I completely agree with Anil. I don't have anything to add. So point is over here is very simple. Like as we see that number one, you should have one primary source, and that primary source shall be more consistent right from the very beginning part of your preparation. Right, the primary sources shall not keep changing over this. इसका मतलब है अगर आप current affairs की कोई particular magazine follow कर रहे हो या कोई particular compilation follow कर रहे हो, तो you shall keep on following this for a longer period of time, right? Yes. Because what happens, you know how the informations are covered there and how right what kind of a presentation they have, what kind of a right explanation normally they follow there. Moreover, that the subsequent right editions they are in sync with the previous editions over there, so it basically prepares a kind of a proper structure, proper framework to the preparation. Number two, as Anil has already pointed out, that when you have a primary source of reference, then you go through this. लेकिन अगर लगता है कि अगर टाइम बचा हुआ है, as generally you should have a must shall may strategy, तो must में तो प्राइमरी सोर्स हो ही गया। अगर टाइम बच रहा है तो फिर आप सेकेंडरी सोर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर टाइम बचेगा ये होने के बाद ही फिर यू कैन गो इनटू द सेकेंडरी सोर्स ओवर देयर। और अगर आपको टर्शियरी सोर्स रखना है तो आपको लगता है इसके बाद जाना है, पर उसमें कंडीशन ये थी दैट द सेकेंडरी सोर्सेज शैल नॉट ओवरलैप विद द प्राइमरी सोर्सेज। इट मींस अगर वो चीज वहां पे पढ़ ली है तो फिर दूसरे सोर्स से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिर अननेसेसरी आपका टाइम का वेस्टेज है। और मुझे लगता है शायद देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू शुड नॉट बी unnecessarily wasting your time in order to pick certain one or two particular information from the right this heap of all those information, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई टॉपिक लगता है कि उसमें 10 पेज में कवर है, यहाँ 2 पेज में कवर था, तो हमें लगता है उसको पढ़ लो, शायद वहां से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली एट दिस जंक्चर। प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, बिफोर वी पार्ट वेज, वन सिंपल पीस ऑफ एडवाइस दैट these days what you have at your hand
can have a very significant role to play in your entire this success of entire journey over there. And that's why have a productive utilization of time. Rest and study both are significant with respect to this entire journey. You cannot take a toll on your health and they can have a good preparation over there. As we say, this is the time of sustainable development. This is also a time for you of sustainable preparation. So when we say sustainable preparation, not only you need to focus on the preparation in terms of your syllabus aspect, you also need to focus on preparation with respect to your physical aspect, with respect to your mental aspect. So when we say the physical mental aspect, it means you need to be physically fit. You need not to have too much of a mental stress over there. Otherwise, on the day of the examination, it may result in a mix of factors which eventually may lead to not having a desired success in the examination. I hope we somewhat been able to provide some sort of informations which may help you in planning your strategy well in order to achieve the desired success in the prelim examination, right? Thank you very much for watching us. Next time, if you find time, we'll be meeting you. Thank you.